السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ ملک پیٹ پولیس نے ایک عادی سارق کو کیا گرفتار جو گھروں میں چوری کی واردات انجام دیا کرتا تھا، جس کی شناخت اعجاز کے طور پر کی گئی ہے۔ ملک پیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت شالویہ نگر اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی آشا ورکر سجاتا کی ہوئی موت۔ مسلم باغ روڈ پر آشا کارکنان نے کیا احتجاج۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے کانگریس کے دیگر سینئر قائدین بشمول سمیر ولی اللہ، انل کمار یادو کے ساتھ بدھ کے روز حیدرآباد کے نامبلی میں واقع حج کیمپ 2022 کا کیا دورہ اور عازمین حج سے کی درخواست کہ وہ ملک و بالخصوص تلنگانہ کے امن و خوشحالی کے لیے کرے دعا۔ شہر حیدرآباد کے بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں چوری کی واردات آئی پیش۔ تفصیلات کے مطابق سعادت نگر میں پیش آیا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ گھر میں وہ لوگ نہیں تھے۔ 3 دن کے بعد آئے کہ دیکھنے پر 3 لوگ گھر میں ٹوٹے ہوئے تھے اور گھر سے سونا اور دیگر اشیاء غائب تھے۔ حکومت کی جانب سے شہر کے یونیورسٹی کالج فار ویمنز کوٹھی کو خواتین کی پہلی یونیورسٹی کے طور پر ترقی دینے کے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے گریٹر حیدرآباد و ریاست کے دیگر مقامات پر مزید 131 بستی دواخانے 15 اگست تک قائم کرنے ضروری ہدایت کی جاری۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے انٹر نتائج جاری کرنے تمام تیاریاں مکمل۔ توقع ہے کہ 25 جون کو انٹر نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جاری اقلیتی اقامتی اسکولوں میں تقررات کی فہرست میں 170 جائیدادیں خالص اردو کی ہیں، جن پر اردو داں کا ہی تقرر ہوگا۔ اس لیے اردو میڈیم امیدواروں کو اعلامیے کی اجرائی کے علاوہ امتحانات کی تیاری یقینی بنا کر تیار رہنا چاہیے۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KTR نے کہا، حیدرآباد بنگلور کے درمیان ڈیفنس کوریڈور قائم کرنے کی مرکز سے نمائندگی کرنے کے باوجود اہمیت نہ دینے پر سخت برہمی کا کیا اظہار۔ مکہ مسجد و شاہی مسجد باقیامہ کے ملازمین نے کانٹریکٹ ملازمین کے زمرے سے نکال کر انہیں عارضی ملازمین کے زمرے میں ڈال دیے جانے پر بطور احتجاج اپنی تنخواہیں حاصل نہ کرنے کا کیا فیصلہ۔ پولیس نے آندھرا پردیش اڑیسہ سرحد پر ہائی الرٹ کیا جاری۔ اڑیسہ میں مونوازوں کے حملوں کے پیش نظر پولیس نے چوکسی اختیار کر لی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے 13,313 نئے معاملے آئے سامنے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 4,33,44,958 ہو گئی۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ملک پیٹ پولیس نے ایک عادی سارق انٹرسٹیٹ ہاؤس بگلر کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 85 گرام گولڈ آرنامنٹس اور 2.5 لاکھ روپے نیٹ کیش بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی شناخت سید اعجاز عرف عمران ولد سید احمد لیٹ 27 سالہ ڈرائیور اور میسور کرناٹکا کا ساکن بتایا گیا ہے، جسے راجیو چوک دلسکھ نگر پر گرفتار کر لیا گیا۔ ఈ జోన్లోని మలక్పేట పిఎస్లో
ఒక ఇంటర్ స్టేట్ క్రిమినల్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పేరు సయ్యద్ ఇజాజ్ ఇలియాస్ ఇమ్రాన్, 27 years. అతను నేటివ్ ఆఫ్ బెంగళూరులో ఉంటాడు, మైసూర్లో ఉంటాడు, కర్ణాటక స్టేట్. అతను మన దగ్గర 14 మే నాడు ఇక్కడ మన పక్కన పోలీసుల దగ్గర ఉన్న వెంకటాద్రి నగర్ అని చెప్పేసి కాలనీ ఉంది. దాంట్లో వచ్చేసి అదే కాలనీలో 2 ఇళ్లలో మనకు దొంగతనం చేశాడు. ఒక ఇంట్లో 90 grams గోల్డ్, ఒక ఫైల్. मलकपेट पुलिस स्टेशन के तहत शालविहाना नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आशा वर्कर सुजाता की बुध को मौत हो गई. मुसरमबाग रोड पर आशा कारकुनान परेशान हैं और सुजाता की मौत पर बताया कि हुक्काम की हिरासानी और काम के बोझ की वजह से उसकी ये मौत हो गई है. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुजाता के खानदान की माली मदद की जाए और उसके खानदान के अफराद को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए. सड़क पर यहाँ पर एहतजाज भी देखा जा रहा. హైదరాబాద్ జిల్లా షాల్వాన్ పిఎస్సిలో యూపీఎస్సిలో సుజాత అనే ఆశా వర్కరు నిన్న సాయంత్రం హాస్పిటల్లో చనిపోయింది. ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తూ పనిభారం భరించలేక పనిభారం ఎక్కువైపోయి ఆన్లైన్ పని, ఫోన్లో మాట్లాడడం, ఫోన్లో టైప్ చేయడం, ఇంటింటికి తిరగడం, ఈ పనిభారం బాగా ఎక్కువైపోయి అక్కడికక్కడే కుప్పగూలింది. ఈ కుప్పగూలిన ఆశా వర్కర్ని యశోద హాస్పిటల్కి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, మిగతా ప్రజలు తరలించారు, అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి తీసుకెళ్లే వరకే సుజాత ప్రాణం కోల్పోయింది. మరి సుజాతకి 3 పిల్లలు ఉన్నారు, 2 ఆడపిల్లలు, 1 అబ్బాయి. వీళ్ళందరూ కూడా 10వ తరగతి లోపే చాలా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. సుజాత కుటుంబం చాలా పేద కుటుంబం. వాళ్ళ ఆయన కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక కాంట్రాక్ట్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మరి చాలా రోజు కష్టం చేసుకుంటే తప్ప బతకలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ కుటుంబం ఉంది. అందుకే ఈ సందర్భంగా ప్రాణానికి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే, మళ్ళీ ప్రాణాన్ని తీసుకురాలేము. కానీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టడం కోసం, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడం కోసం సుజాత ప్రాణానికి, వాళ్ళ కుటుంబానికి साबिक वजीर मोहम्मद अली शबी ने कांग्रेस के दीगर सीनियर कायदीन बशमूल समीर वलीउल्लाह, अनिल कुमार यादव, सैयद निजामुद्दीन, वाजिद हुसैन, मकसूद हुसैन और दीगर के साथ बुध के रोज हैदराबाद के नामपली में वाक़े हज कैंप 2022 का दौरा किया. आज़मीन हज की खेब शबीर अली ने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो मुल्क बिलखसूस रियासत तेलंगाना में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं करें. बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदात पेश आई. तफसीलात के मुताबिक ये वाकया सादत नगर में पेश आया. घर वालों का कहना है कि वो लोग 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे. सुबह जैसे वो लोग घर आए तो उनके घर के 3 लॉक टूटे हुए थे और दरवाजे खुले हुए थे, जिसको देखकर घर के मालिक मोहम्मद हाजी मियां ने बालापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इत्तला दी. पुलिस ने मौके पर वारदात पर पहुंचकर देखा तो उनके सामान में से 5 तोला 6 तोला चांदी और कुछ सामान नहीं थे. पुलिस वालों ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया. बादजा मीडिया से बात करते हुए घर के मालिक मोहम्मद हाजी मियां ने कमिश्नर से अपील की है कि यहाँ पर पुलिस की राउंडिंग बढ़ाई जाए ताकि यहाँ फिर से कोई चोरी की वारदात पेश न आए और मदद की भी अपील की है. से जल्द ये चीज़ें आ गए तो अच्छा रहेगा. हुकूमत की जानिब से शहर के यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन्स कोठी को ख्वातीन की पहली यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने इक़दामात का आगाज कर दिया. साल 2023 में ये कॉलेज ख्वातीन की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगा. वुमेन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में MA उर्दू के अलावा दीगर शोबेजात में दाखिलों का अमल जारी है और दाखिला एंट्रेंस की बुनियाद पर होगा. हुकूमत की जानिब से कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का एलामिया जारी कर दिया गया और दाखिले के अहलियती इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त के अदखाल की आखिरी तारीख 4 जुलाई है, जबकि जुर्माने के साथ 15 जुलाई तक दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी तेलंगाना में खवातीन के लिए मखसूस पहली यूनिवर्सिटी होगी, जहां मुकम्मल अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा. खवातीन की इस यूनिवर्सिटी में तालिबात मुकम्मल महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सकती हैं.
वजीर सेहत हरीश राव ने ग्रेटर हैदराबाद व रियासत के दीगर मुकामात पर मजीद 131 बस्ती दवाखाने 15 अगस्त तक कायम करने जरूरी हिदायत दी है। फिलहाल तैयार 12 दवाखानों का जल्द इफ्तिताह करने पर जोर दिया। हरीश राव ने महकमे सेहत के हुकाम का इजलास तलब करके बस्ती दवाखानों के क़याम के लिए इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों का क़याम वज़ीर आला KCR की ज़हनी इख्तरा है। JHMC की हदूद में कायम बस्ती दवाखानों से गरीब शहरियों के तिब्बी मुसारिफ में कमी आई है। इन दवाखानों की कारकर्दगी पर अवाम का मुस्बित रद्दमल है। JHMC हदूद में 259 बस्ती दवाखाने दस्तयाब हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 26 जून को होने का इम्कान है और 10वीं जमात के नताइज 30 जून से पहले जारी किए जा सकते हैं। मालूम हुआ है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के ओहदेदारों ने इंटर के नताइज के इजरा के लिए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से इजाजत तलब की है। इब्तदाई तौर पर ओहदेदार 25 जून को नताइज जारी करने के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि इसकी इतला वजीर तालीम को भी दी गई है। तशखीस के बाद नंबर कंप्यूटर में डाले गए हैं, लेकिन हुकाम को मुबैना तौर पर इस अमल में कुछ गलतियों का पता चला और गलतियों को दूर करने में मसरूफ है। महकमे इम्तिहानात के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। एलिवेशन और डी कोडिंग खत्म हो चुकी है और एक बार फिर जांच पड़ताल के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुबैना तौर पर ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो सब कुछ चेक करने के बाद नताइज जारी करें, चाहे इसमें कुछ दिन और क्यों न लगे। महकमे अक़लियती बहबूद की जारी अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तक़र्रुरात की फहरिस्त में 170 जायदादें खालिस उर्दू की हैं, जिन पर उर्दू दां का ही तक़र्रुर होगा। इसलिए उर्दू मीडियम उम्मीदवारों को एलामिया की इजराई के अलावा इम्तिहानात की तैयारी यकीनी बनाकर तैयार रहना चाहिए। अक़लियती अक़ामती स्कूलों की इन जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया में आइंदा महीने के वसत तक जारी कर दिए जाने का इम्कान है। 170 खालिस उर्दू की जायदादों में 120 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और 50 जूनियर का लेक्चर की जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाने हैं, जिन पर उर्दू दां तबके को बआसानी मुलाजिमत हासिल हो सकती है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत में भी उम्मीदवारों की हद उम्र 44 साल रखे जाने का इम्कान है। इसीलिए तमाम अहले और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को क़ब्ल अज़ वक्त अपने तमाम दस्तावेज़ात यकजा करते हुए इन जायदादों पर तक़र्रुरात के एलामिया की इजराई के साथ ही दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रियासती वज़ीर IT व सनत KTR ने कहा है कि हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान डिफेंस कॉरिडोर कायम करने की मरकज से नुमाइंदगी करने के बावजूद अहमियत न देने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड मुंतकिल करने की मजम्मत की। उन्होंने
قیام کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہا کہ KTR نے ویم ٹیکنالوجیز ریاست میں قائم ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس سے 2000 افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تیز رفتار ترقی کرنے والی تلنگانہ جیسی ریاستوں کے مرکزی حکومت کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، مگر نریندر مودی کے زیر قیادت مرکزی حکومت تلنگانہ سے سوتیلا سلوک کر رہی۔ تلنگانہ حکومت ریاست میں صنعتوں کے قیام اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی۔ مکہ مسجد و شاہی مسجد باقیامہ کے ملازمین نے کانٹریکٹ ملازمین کے زمرے سے نکال کر انہیں عارضی ملازمین کے زمرے میں ڈال دیے جانے پر بطور احتجاج اپنی تنخواہیں حاصل نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور مکہ مسجد و شاہی مسجد میں برسر خدمت عملے نے متفقہ طور پر کیے گئے اپنے اس فیصلے سے ضلع اقلیتی بہبود عہدیدار کو واقف کروا دیا۔ ریاستی حکومت کے محکمہ فائنانس کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق ریاستی حکومت نے دونوں مساجد میں خدمات انجام دینے والے عملے کی خدمات کو برخاست کرتے ہوئے انہیں ایجنسی کے ذریعے تقرر کے احکامات جاری کیے تھے، اور اب ان کی تنخواہیں محکمے کے بجائے تیسری ایجنسی کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی، جس پر ناراض عملے نے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling, basement finishing and remodeling, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address: बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। मलकपेट पुलिस ने एक आदिश सारिक को किया गिरफ्तार जो घरों में चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था, जिसकी शिनाख्त एजाज के तौर पर की गई है। मलकपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत शालविया नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आशा वर्कर सुजाता की हुई मौत। मुसरमबाग रोड पर आशा कारकुनान ने किया एहतजाज। साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने कांग्रेस के दीगर सीनियर कायदीन बशमूल समीर वलीउल्लाह, अनिल कुमार यादव के साथ बुध के रोज हैदराबाद के नामभली में वाक़ हज कैंप 2022 का किया दौरा और आज़मीन हज से की दरख्वास्त कि वो मुल्क व बिलखसूस तेलंगाना के अमन व खुशहाली के लिए करे दुआ। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक सादत नगर में पेश आया। घर वालों का कहना है कि घर में वो लोग नहीं थे। 3 दिन के बाद आए के देखने पर 3 लोग घर में टूटे हुए थे और घर से सोना और दीगर अशिया गायब थे। हुकूमत की जानिब से शहर के यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन्स कोठी को ख्वातीन की पहली यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने के इक़दामात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ग्रेटर हैदराबाद व रियासत के दीगर मुकामात पर मज़ीद 131 बस्ती दवाखाने 15 अगस्त तक कायम करने ज़रूरी हिदायत की जारी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर नताइज जारी करने तमाम तैयारियां मुकम्मल। तवक्को है कि 25 जून को इंटर नताइज जारी कर दिए जाएंगे। महकमे अक़लियती बहबूद की जारी अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तक़र्रात की फहरिस्त में 170 जायदादें खालिस उर्दू की हैं, जिन पर उर्दू दां का ही तक़र्रुर होगा। इसलिए उर्दू मीडियम उम्मीदवारों को एलामिया की इजराई के अलावा इम्तिहानात की तैयारी यकीनी बनाकर तैयार रहना चाहिए। रियासती वज़ीर IT व सनत KTR ने कहा, हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान डिफेंस कॉरिडोर कायम करने की मरकज से नुमाइंदगी करने के बावजूद अहमियत न देने पर सख्त बरहमी का किया इजहार। मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद बाक़यामा के मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के जुमरे से निकाल कर उन्हें आर्जी मुलाजमीन के जुमरे में डाल दिए जाने पर बतौर एहतजाज अपनी तनख्वाहें हासिल न करने का किया फैसला।
पुलिस ने आंध्र प्रदेश ओडिशा सरहद पर हाई अलर्ट किया जारी। ओडिशा में मौनावाजों के हमलों के पेश नजर पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 13,313 नए मामले आए सामने। मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 4,33,44,958 हो गई। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।